Hello everyone, today we are going to start this new series of IGNO syllabus for this subject psychology, and this is the BA syllabus for IGNO. And today we are going to start this chapter which is foundation of psychology, and this is block 1, psychology, what is it? So all the assignments that are given this year for the session January 2024 are from this chapter. First of all, Foundations of Psychology, BPCC 131. So let's get started, and this is the block 1 of psychology. What is it? We shall be reading this all in this unit first of all, and so these are the structures and the objectives. Firstly, we have the introduction, then we have the definition of psychology. So this is the first topic actually, definition of psychology, introduction as science, origin and development, subfields, research, methods of research, psychology in India, summary and some review questions. So we shall be discussing it in such a way that we are able to solve any question given from this unit. We will be doing it question wise. After reading a particular session, we will be asking ourselves a question and writing it in the given words. How many words you have to write? So let's start. The first topic is 1.0 is learning objectives. So in this chapter, what we are going to study, these are the learning objectives. So let's see. The learning objectives are, after studying this unit, you will be able to answer these questions. You will be able to define psychology, appreciate psychology as a science. उसका origin हमें पता होगा, development पता होगा, subfields पता होंगे, study methods पता होंगे, and development of psychology in India. Okay, so I shall take this session in both the languages, English and Hindi. We'll be using English here. So let's move to introduction. So, do you know that the word psychology is derived from two Greek words over here? One is psych and one is logos. Psych means soul, life, and logos means knowledge. This was also taught in class 11th and 12th if you have taken psychology as optional. So, psych means soul and logos means knowledge. So, the study of soul is known as psychology. So this is the first thing when a person starts reading psychology, he or she reads. पहले हम यही पढ़ते हैं कि स्टडी ऑफ साइकोलॉजी जो है, साइकोलॉजी स्टडी ऑफ सोल होती है. सोल मतलब साइक यानी आपकी आत्मा. सो सोल आपका इनर सेल्फ भी हो सकता है. आप देखो, the founders of psychology were both philosophers and psychologists, and both tried to find answers to the philosophical question in a scientific manner, like distinction between nature and nurture, existence of free will, etc. तो जो फाउंडर्स थे वो फिलोसोफर्स भी थे, अर्ली ग्रीक फिलोसोफर्स जो थे, और साइकोलॉजिस्ट भी थे. दोनों ने अपने अपने तरीके से आंसर निकालने की कोशिश की, एक फिलोसफिकल वे में, एक साइंटिफिक वे में क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश की अबाउट साइकोलॉजी. तो इन्होंने एक डिस्टिंक्शन क्रिएट की नेचर और नर्चर में. नेचर होता है आपका जो इन्वायरमेंट है, एंड नर्चर मीन्स टू ग्रो समथिंग. मतलब आपका जो उस टाइम में आपका जो बिहेवियर आ जाता है, आपकी जो क्वालिटीज़ आ जाती हैं, दिस इज़ नेचर एंड नर्चर. Nature is your tendency to do something, your particular tendency, and nurture tells about the way in which you get those tendencies. आगे जाके और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा ये. Existence of free will and the word psychology, जिसको हम साइकोलॉजिया बोलते हैं, साइकोलॉजिया बोलते हैं लैटिन में, dates back to the 16th century but was popularized in German in the early 18th. तो 16th century से ये सब कुछ शुरू हो गया था साइकोलॉजिया का कंसेप्ट, बट 18th century में फिलोसोफर हुए हैं क्रिश्चियन वॉर्फ, और इन्होंने ही इस पूरी साइकोलॉजी को 18th century में लाया. कहाँ पर? जर्मनी में. ओके. Yes. Now, one of the most influential early users of the term in English were Herbert Spencer.
So who published his first volume in Principles of Psychology in 1870? So in 1870, underlying this 1870, he published this book known as Principles of Psychology, a foundation, the first volume, and it is in 1870 by Herbert Spencer. In English, it was. Now, psychologists preferred using the word mind rather than soul because I told it was inner self, so they use the word mind instead of this soul. Psychology was one of the last special sciences that separated philosophy in the 19th century. Ab psychology separated philosophy. We will study this. Today, psychology is very popular among students and become a part of everyday life. So, in this unit, we will talk about the interesting facts and information about the origin of psychology के बारे में पढ़ेंगे. And this unit will explain the psychology in all about is all about what are the different approaches applied to psychologies to understand human behavior, and the unit will further elucidate various subfields of psychology and methods used to conduct research in psychology. It will also discuss the major areas where psychologists work, and finally डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी इन इंडिया. तो दिस इज ये सिर्फ हमें बता रहा है कि हमने पढ़ना क्या क्या है. अभी रियल यहाँ पे स्टार्ट नहीं हुआ है. अभी तक हमने सिर्फ जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा है. आई एम जस्ट गोइंग टू मार्क इट सो दैट दिस वी हैव टू रिवाइज लेटर ऑन. सो आई विल मार्क इट इन द फॉर्म ऑफ you're supposed to mark it like this. This is the first thing that we have to understand. Rather than we need not to focus on anything else because we have to write answers over there, that too long answers. See, इतना इतना पोर्शन ही है जो हमने इसमें पढ़ना है. इसके अलावा कुछ भी इस वाले पैराग्राफ में नहीं पढ़ना है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट है हमारा जहाँ से मेन चैप्टर शुरू होता है, डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी. Definition of psychology. Let's start reading this. It is difficult to define psychology as it has a very vast scope. So scope of psychology, तो हर field में psychology है. Medicine में as doctors you have to understand the psychology of the patients. आप teacher हैं तो आपको अपने students की you need to understand the psychology of the student. In business it is used, everyday market it is used. So as the discipline was emerging, there were long debates as what should be studied in psychology and how it should be studied. जैसे जैसे ये डिसिप्लिन मतलब कि किसी भी चीज़ का कोई पार्ट होता है ना जो हमने पढ़ना होता है, न्यू चीज़ जो इमर्ज हो रही होती है, जैसे वो इमर्ज हो रही थी तो क्वेश्चंस ये उठने लगे कि हमने इसको पढ़ना कैसे है, किस फील्ड में हम इसको पढ़ें. जो मोस्ट पॉपुलर डेफिनेशन थी वो ये है, and it is the science of human and animal behavior and it includes application of science to different problems of the humans. मतलब जो सबसे पहली डेफिनेशन आई वो यही आई कि ये है साइंस ऑफ ह्यूमन और एनिमल बिहेवियर. हमारा बिहेवियर का, हमारे माइंड की साइंस है ये, जो कि इंक्लूड करती है एप्लीकेशन ऑफ साइंस टू डिफरेंट प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. ह्यूमन बिहेवियर में कैसे कैसे हम इसको साइकोलॉजी को अप्लाई करके हम ह्यूमन की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं. Most accepted definition today is psychology is the science of behavior and mental processes. So underline, mark this, highlight this. This is the main definition here. Psychology is the science of behavior and mental processes. Thus there are three parts to the definition. आपने देखा, पहला है साइंस, दूसरा है बिहेवियर और तीसरा है मेंटल प्रोसेसेस. साइंस बिकॉज it systematically tries to gather data by carefully observing and recording events or behaviors of human and animals under controlled environmental condition. साइंस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये साइंस जैसे हमारा क्या होता है, साइंस हमारे इन्वायरमेंट, उसकी ऑब्जर्वेशंस. तो साइकोलॉजी एक साइंस है क्योंकि ये हमारे बिहेवियर को, हमारे ऑब्जर्वेशन को, हमारे रिकॉर्ड्स को, हम क्या अपनी लाइफ में कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, वो सब कुछ इसमें हमारी साइकोलॉजी के अंदर ही आता है. और सिस्टमैटिकली एक उसको गैदर करने की कोशिश करती है. बिल्कुल उसको एक सिस्टमैटिक वे में रखा होता है इसने अपने पास, दैट व्हाट यू हैव डन इन दिस पार्ट ऑफ योर लाइफ. इस पार्ट में आपने क्या किया, क्या बिहेवियर है आपका, क्या आपकी क्वालिटीज़ हैं, कंट्रोल्ड कंडीशन में आप कैसे बिहेव करते हो, और
अनकंट्रोल कंडीशन में कैसे बिहेव करते हो. तो दस मेजरमेंट ऑफ बिहेवियर इज एन ऑब्जेक्टिव एज पॉसिबल इन साइकोलॉजी. तो बिहेवियर तो है ही ऑब्जेक्टिव. साइकोलॉजी में हम बिहेवियर के साथ तो डील करते ही हैं, किसी भी आदमी का, ह्यूमंस का जनरली बिहेवियर. एनिमल्स का भी डिस्कस होगा. द नॉलेज that is gained collecting data with the help of experiments and other methods of observation is then applied to the real life problems. So जो डाटा हम इससे लेंगे वो हम अपनी रियल लाइफ में यूज़ करेंगे. जैसे what a psychologist does, he he or she analyzes what kind of behavior you are showing in what kind of situations, and then apply all those things in the real life. So देखो, second one is behavior. Obviously behavior. So behavior, the term second is behavior. Behavior in the definition implies the overt actions and reaction. Overt क्या होता है? Overt means which you are shown, which can be seen, जो आप दिखा रहे हो. ठीक है, जो आप बाहर से एक्शन दिखाते हो उसको बोलते हैं. सो whatever the animal or the humans do, मतलब जो वो करते हैं, that is of interesting can be recorded such as actions, thoughts, emotions, attitudes etc. ये सब कुछ रिकॉर्ड होता है, हमारे बिहेवियर में बंद हो जाता है. कि अगर मैं एक सिचुएशन, एंग्री सिचुएशन में अगर मैं साइलेंटली बिहेव करती हूँ तो मैं सभी एंग्री सिचुएशन में साइलेंटली ही बिहेव करूँगी. ये मेरा बिहेवियर बन जाएगा. Lastly, the term mental processes is mentioned. So let's study about this. It refers to all the covert और internal processes. Covert मतलब अंदर से जो आप सोचते हो, जो आपके दिमाग में चलता है पर आप दिखाते नहीं हो, that is covert. So such as thinking, feeling, remembering. So तो अब हम कह सकते हैं कि साइकोलॉजी क्या करती है, वो अंडरस्टैंड करती है और प्रिडिक्ट करती है ह्यूमन बिहेवियर को. Isn't it? Yes. Let's move further. इसमें हमें क्या पढ़ना है मैं बता देती हूँ, एक मिनट. सो अभी हाँ, इस टॉपिक में हमने क्या पढ़ना है, ये पूरा ही टॉपिक इम्पॉर्टेंट है और इतना बड़ा भी नहीं है ये, तो आई विल मार्क देन ऑल्सो. सी, सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हेयर, जहाँ से डेफिनेशन स्टार्ट होती है, मोस्ट पॉपुलर डेफिनेशन, एंड यहाँ से यहाँ तक. दिस इज द होल यू नीड टू स्टार्ट. दिस इज द थर्ड important point for today. Let's move further. This box you have to read by yourself. It is only a kind of thought by a psychologist association. Now let's move to the third topic, that is psychology as a science. मतलब जो हमने डेफिनेशन पढ़ी उसी का फर्स्ट पार्ट हम पढ़ने वाले हैं. तो देखिए, the ancient Greek philosophers inquired into how human beings know the world. वो वर्ल्ड को कैसे जानते हैं. एंड दिस इज नोन एज एपिस्टेमोलॉजी. एपिस्टेम मीन्स नो, नॉलेज, और लॉगस मीन्स डिस्कोर्स, मतलब किसी भी चीज़ उसकी स्टडी. लॉगस मीन्स स्टडी. लॉजी ऑल्सो मीन्स स्टडी. लॉजी और लॉगस इज सिमिलर. तो ग्रीक वर्ड है ये एक, और एपिस्टोमी का मतलब है, एपिस्टेमोलॉजी का मतलब है कि हम कैसे वर्ल्ड को जानते हैं. इफ वी ट्रेस द हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी वी फाइंड दैट साइकोलॉजी इमर्ज्ड फ्रॉम merging of physiology and a branch of biology that was natural science. Yes, it is true. And the branch of philosophy known as episteme. तो इसने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बोल दी है. इसने बोला कि साइकोलॉजी जो थी, he says that psychology which we know today, it is the sum of what? Physiology, study of body and body functionings, the metabolic reactions, and philosophy which part? Epistemology, and one more, that is natural biology. So this is a very important point, you need to know this, right? Let's read further. आगे क्या बोला है. Next it is saying that, so thus conceptual foundations of psychology are found in philosophy, है ना. जो भी concept
फाउंडेशन है, कंसेप्चुअल फाउंडेशन है साइकोलॉजी का, वो फिलॉसफी में मिलता है. बट द क्रिएशन ऑफ इंडिपेंडेंट साइंस ऑफ साइकोलॉजी केम फ्रॉम बायोलॉजी. इंडिपेंडेंट साइंस ऑफ साइकोलॉजी जो हमने एक न्यू ब्रांच निकाली, इस पूरी ब्रांच साइकोलॉजी ये एक बायोलॉजी में से निकल के आई है. The early psychologists believed that psychology could be developed through a systematic framework of conducting research in experimental laboratory. तो जो पहले लोग थे वो बोलते थे कि हम क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंटल लेबॉर्ट्रीज में करेंगे कुछ एक्सपेरिमेंट्स, और जिससे हम सिस्टमैटिक फ्रेमवर्क और एक प्रॉपर ऐसे ऐसे बता देंगे कि ऐसे ऐसे चीज़ें चलती हैं, इसी तरीके से काम होता है. सो कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ डार्विन, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जो कि बायो में पढ़ी जाती है, न्यूटन, कंसेप्चुलाइजेशन ऑफ फिजिक्स लॉ, एंड Mendeleev का periodic table strengthened the systematic approach towards psychological research. Thus, in the beginning, psychology was a synthesis of physics, physiology, and mental philosophy, and psychological research was restricted to mind-body physical relation. तो ये पहली बातें बता रहे हैं कि ये सब कुछ जो थे सभी सब्जेक्ट्स इसमें मिले हुए थे, और ये सब क्या था, सिंथेसिस इसका था. फिजिक्स भी इन्वॉल्व थी, फिजियोलॉजी भी इन्वॉल्व थी, मेंटल फिलोसफी भी इन्वॉल्व थी, एंड साइकोलॉजिकल रिसर्च भी इसमें इन्वॉल्व थी. लेटर विद द ग्रोथ ऑफ द डिसिप्लिन हमने ये क्या अंडरस्टैंड किया कि with the growth of discipline we understood this thing that सोशल और कल्चरल इंटरपर्सनल प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन को भी इंक्लूड करना चाहिए, राइट, बिकॉज दैट इज ओनली वेयर वी आर गोइंग टू अप्लाई द साइकोलॉजी. सोशल, कल्चरल, इंटरपर्सनल. इंटरपर्सनल मतलब इंटर स्कूल हो गया, दो स्कूल्स के बीच में. इंटरपर्सनल मतलब वन पर्सन एंड सेकेंड पर्सन, उनके बीच में जो भी प्रॉब्लम्स हैं दैट इज इंटरपर्सनल प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, उसको भी इंक्लूड करेंगे. इट मे बी एडेड हियर दैट थ्योरेटिकल leanings of psychologists, for example physiological psychologists focus on study of nervous system, glandular system, बोला ना, body functions. Social psychologist concerned with the social aspect of human behavior is most important in understanding of the behavior. तो ये सभी चीज़ें आपस में, जो मेन चीज़ यहाँ पे लिखी गई थी कि फिजियोलॉजी, बायोलॉजी और साथ में फिलोसफी का मिक्सचर है, तो वही यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है. So there have been different views of whether psychology should be part of natural sciences or social sciences. क्योंकि सोसाइटी में यूज़ करते हैं तो सोशल साइंसेज में यूज़ होना चाहिए, सोशल बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होता है, लेकिन नेचुरल साइंसेज का भी बहुत रोल है, बॉडी फिजियोलॉजी इसके अंदर आती है. तो देखते हैं आगे क्या होता है. लिसन, जस्ट अ मिनट. So there have been different views as whether psychology should be a part of natural sciences or social sciences. For psychology to be considered as natural sciences, the main assumptions are natural monism. Natural monism का मतलब है, which is also known as reductionism. इसका मतलब क्या होता है? Phenomena is reduced or simplified to the simplest part. मतलब उसको बहुत सिंपल करके बता दो. और एक है यहाँ पे, 1 second, it's not visible. Operationalism. Operationalism means validity of finding depends on the validity of procedures employed in arriving at the finding. Operationalism मतलब प्रोसेस के दौरान आपको पता चले कि क्या वो कैसे काम करेगा, अगर हम उसको नेचुरल साइंस का पार्ट बनाएं तो. और एक है डिटर्मिनिज्म. डिटर्मिनिज्म मतलब कि सभी एक्शंस ऑफ सब्जेक्ट को, जो भी नेचुरल लॉज है उनको कैसे एक्सप्लेन करें कि उसका कॉजेटिव फैक्टर्स कैसे हैं, इंडिविजुअल की हेरिडिटी कैसी है, इन्वायरमेंट कैसे हैं. तो 3 चीज़ें इसमें इंक्लूडेड हुई. फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ नेचुरल मॉनिज्म. सो दिस इज इम्पॉर्टेंट ऑब्वियसली. नेचुरल मॉनिज्म जिसको हम रिडक्शनिज्म बोलते हैं कि बहुत ही शॉर्ट करके चीज़ को हम सिंप्लीफाइड वे में एक्सप्लेन कर देंगे. सेकेंड वन इज ऑपरेशनलिज्म एंड थर्ड वन इज डिटर्मिनिज्म. डिटर्मिनिज्म किससे बना है? डिटरमाइन वर्ड से बना है. डिटरमाइन करना मतलब बाद में पता करना किसी चीज़ का, कब, किससे पता करना, अबाउट उसकी हिस्ट्री कैसी है, हेरिडिटी कैसी है, और इन्वायरमेंट कैसा है. फॉर साइकोलॉजी टू बी कंसिडर्ड एज सोशल साइंस द रिसर्चर यूजेस एक्सपेरिमेंट, फॉलोज अ प्रिकॉशनरी मेजर्स करते हैं फॉलो, एंड साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन एंड कंट्रोल एंड इंटरप्रेट्स द रिजल्ट. मतलब वही, आप किसी इंसान पे कोई भी एक्सपेरिमेंट करोगे
आप उसके रिजल्ट्स निकालोगे. एंड कंट्रोल ऑब्जर्वेशन, यू विल वर्क ऑन द ऑब्जर्वेशन एंड कंट्रोल एंड इंटरप्रेट द रिजल्ट इन क्वांटिटेटिव और स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स. Although there are no assumptions in designing experiments or studies as well as interpreting data. ऐसा कोई भी assumption नहीं दे सकते हैं क्योंकि रिजल्ट कुछ भी आ सकता है. अब देखिए आगे हम मूव करते हैं. So this is only what you need to understand, main points. Actually इस टॉपिक में जनरली वो बात कर रहा है. आई डोंट थिंक इससे कोई क्वेश्चन एज सच फॉर्म हो सकता है. इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आपको माइंड में रखने हैं. बस ये पैराग्राफ रहते हैं इसके, अभी है ओके, कुछ पैराग्राफ इसके अभी रहते हैं और फिर हम इसका पॉइंट वाइज एनालिसिस कर लेंगे. सो सी, here it is telling that psychology thus studies human and animal behavior very carefully in a scientific manner, systematic manner, sorry, मतलब दोनों चीज़ों को, दोनों एस्पेक्ट्स को साथ में लेके चलता है. It is as objective as in its evolution as any other field of science. Objective मतलब कि different answers आ सकते हैं. And it has empirical approach. Empirical approach मतलब it gathers information or data by doing experiments and observation, analyzing, interpreting data within a framework that may be replicated or verified rather than relying on other opinions, beliefs, and discussions. So the answers over here can be various because we are conducting experiments on different people, different observations we are taking, analyzing and interpreting the data within a framework, and it can be replicated to different opinions and discussions and not on one only. Now see here, let's move further. The experiments that are conducted have certain variables that are controlled. Variables are actually the environmental conditions, sort of, that are controlled and designed in such a way that if someone else want to repeat the study, they can do so. Okay. The data is very systematically and quantified in order to understand the order of events. Means when we are writing an experiment, suppose आप एक science का experiment कर रहे हो, like it is a part of science only. You have certain procedures. First is you need to take a beaker and heat that beaker. Second is you need to uh, put a solution in that. Then you will find crystals of that. Then you need to take out the crystals. So this is एक्चुअली अ प्रोसीजर सॉर्ट ऑफ. तो आप कैसे भी उल्टा सीधा नहीं कर सकते. एक वेरिएबल, एक बुकलेट्स भी आती हैं, साइकोलॉजी की भी बुकलेट्स आती हैं जिसमें हमें बताया जाता है कि कैसे आपने किसी भी प्रोसीजर को फॉलो करना है. उस प्रोसीजर को फॉलो करके ही आपका एक्सपेरिमेंट हो सकता है, उल्टे सीधे तरीके से नहीं हो सकता. तो दैट इज ओनली इट इज ट्राइंग टू टेल दैट दिस इज द वेरिएबल और द इन्वायरमेंटल कंडीशन सॉर्ट ऑफ बोल सकते हैं जो कि हमने उस चीज़ को लाने के लिए बनाई गई है. अब देखो आगे क्या लिखा है. दे हैव रिटन दैट नाउअडेज क्वालिटेटिव अप्रोच हैज़ ऑल्सो गेन्ड इम्पॉर्टेंस. The results obtained thus contribute the development of theories that can help predict the behavior. Sometimes theory also guides research in the results endeavor. Yes. तो इन्होंने क्या एक्सप्लेन किया इसमें, एक बार हम समराइज कर लेते हैं बिकॉज बहुत सारी चीज़ें इन्होंने इसमें बताई हैं. हमने स्टार्ट किया था साइकोलॉजी एज ए साइंस से. सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, एक बार पीछे चलते हैं. यहाँ से अगर हम शुरू करें तो सबसे पहले हमने पढ़ा अबाउट साइकोलॉजी. साइकोलॉजी क्या है, अबाउट द डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ साइकोलॉजी, द ब्रांचेज ऑफ साइकोलॉजी थोड़ी पढ़ी, कहाँ पे यूज़ होती हैं, फिर क्या क्या लोगों की क्या क्या थिंकिंग थी साइकोलॉजी को लेकर, हमने वो पढ़ी. फिर हम आगे डेफिनेशन भी, एक साइंटिफिक डेफिनेशन थी, उसी को 3 पार्ट्स में एक्सप्लेन किया था, दैट वाज सिंपल. बट अब साइकोलॉजी एज ए साइंस से बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन की गई, बट इसका क्रक्स यही है जो एक लाइन यहाँ पे मेंशन थी, वही पूरा इसका क्रक्स है यहाँ पे. आई विल मार्क इट दैट दिस वन. दिस वन इज द क्रक्स कि इसमें मिक्सचर है ये पूरा. दिस वन, दीज लाइन्स आर इम्पॉर्टेंट कि ये फिजोलॉजी का भी मिक्सचर है, ये साइंस का भी है, और ये साइकोलॉजी तो है ही है, फिलॉसफी भी है.
नेचुरल मॉनिज्म के बारे में बताया हमने, ऑपरेशनलिज्म की, डिटर्मिनिज्म के बारे में बताया, और बाद में ये बताया कि एक सिस्टमैटिक प्रोसीजर ये फॉलो करता है, एक एम्पेरिकल अप्रोच ये फॉलो करता है. दिस इज व्हाट वी हैव स्टडीड नाउ, एम्पेरिकल अप्रोच. नाउ सी, इसमें पूरा बताया कि एक वेरिएबल एनवायरनमेंट आपको रखना पड़ता है, मतलब उनको अभी तक खुद भी क्लियर नहीं है. अभी वो खुद भी यही बताना चाह रहे हैं कि हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं, ऐसे भी पढ़ सकते हैं, अबाउट डिफरेंट डिफरेंट वेज इन विच वी आर डीलिंग विद साइकोलॉजी की हिस्ट्री में जाके बता रहे हैं. अब देखो, नोमोथेटिक एंड आइडियोग्राफिक अप्रोच, अब ये पढ़ते हैं, ये भी एक अप्रोच है साइकोलॉजी की. देखो, कोई भी चीज़ जब इन्वेंट होती है तो उसके डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस निकलती हैं, वेज लोगों के अलग अलग होते हैं, वही हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं. क्वेश्चंस भी हम बाद में डिस्कस करेंगे. लेट्स स्टडी दिस. देखो, nomothetic and ideographic approach. It is an approach to describe the aims, procedure एंड थ्योरेटिकल ओरिएंटेशन ऑफ साइकोलॉजिस्ट. क्या उनका एम है, क्या उनका प्रोसीजर है, और क्या उनका थ्योरेटिकल ओरिएंटेशन है, कौन सी थ्योरी वो यूज़ कर रहे हैं, क्या उनका प्रोसीजर है, और क्या उनका एम है, मतलब इस प्रोसेस को करके वो क्या बताना, क्या स्टडी करना चाहते हैं. So, psychologists with nomothetic approach seek to establish general law and principles governing mental and behavioral processes, ignoring the individual. मतलब उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो इंडिविजुअल किस एज ग्रुप को बिलोंग करता है, कि वो इंडिविजुअल किस कैटेगरी को बिलोंग करता है, कि वो मेल है कि फीमेल है, कि वो ओल्ड है कि यंग है. कुछ उनको कुछ भी इस चीज़ का कोई भी असर नहीं होता है. वो सिर्फ इस चीज़ पे फोकस करते हैं कि हम एक लॉ बना दें, एक मेंटल बिहेवियर लॉ बना दें जो कि सब पे अप्लाई हो जाएगा. In this approach, a number of participants are selected, being as representative sample of the population. Suppose हम बात करते हैं इंडिया की. So इंडिया की जो पॉपुलेशन है उससे इन्होंने एक कुछ लोग निकाले, सपोज करते हैं हमें 10 पीपल इन्होंने निकाले, और बोला कि ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं इंडिया के. हाँ, ये पूरी पॉपुलेशन को स्टडी कर रहे हैं. जो जनरलाइज्ड यहाँ से एक लॉ निकलेगा वो इन सब पे अप्लाई हो जाएगा. आफ्टर द डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस, इंटरफ्रेंसेज एंड जनरलाइजेशंस, हाँ जनरलाइज करके निकालेंगे ये, केयरफुली डन फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट. ये है नोमोथेटिक अप्रोच. और जो आइडियोग्राफिक अप्रोच है वो क्या बोलती है, इट इज़ कंसर्न विद अंडरस्टैंडिंग द पर्टिकुलर इंडिविजुअल. मतलब कि एक एक इंसान, या हम बोल सकते हैं एक एक इवेंट को स्टडी करके. द इंक्वायरी इज फोकस्ड ऑन द पर्सन बिकॉज द अप्रोच एम्फसिस दैट ईच individual is unique and must be understood in terms of his or her physiological, I meant psychological and psychosocial environment. psychosocial का मतलब है कि साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट उसकी सोशल एनवायरनमेंट पे कैसे पड़ रहा है. तो ये क्या बोलना चाह रहे हैं आइडियोग्राफिक वाले, कि हम हर एक इंडिविजुअल पे फोकस करेंगे. हालांकि नोमोथेटिक वाले बोलते हैं कोई बात नहीं, वी विल कंसिडर अ ग्रुप एंड वी विल टेक सम रिप्रेजेंटेटिव आउट ऑफ दैट ग्रुप. ओके, सो दिस वाज the second topic that we have studied. मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाती हूँ ताकि थोड़ा इजी हो जाए समझना. लाइक these are the representatives from a group, and this what we are going to study. And for ideographic, see here, every person is studied. He is also studied. It's also studied. तो ये था हमारा ये वाला टॉपिक. इसके बाद है ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी. ये 2 टॉपिक्स हमने आज पढ़े हैं, 3 टॉपिक्स पढ़े हैं. यहाँ पे थोड़ा मिस प्रिंट है, यहाँ पे 4 आना चाहिए, 4th टॉपिक. पहले हमने सबसे पहले डील किया विद द इंट्रोडक्शन, नाउ वी हैव डील्ड विद डेफिनेशन, एंड वी हैव डील्ड विद द ये तीनों हमने कंप्लीट कर लिए. इंट्रोडक्शन डन, डेफिनेशन डन, एज अ साइंस डन. तो इसमें बेसिकली पढ़ने वाले कितने ऑप्शन हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 टॉपिक्स हमारे पास और बचे हुए हैं. बाकी तो समरी एंड क्वेश्चंस हैं, वो तो हम खुद भी पढ़ सकते हैं. तो इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन एंड साइकोलॉजी एज अ साइंस वी हैव डन. ओरिजिन एंड डेवलपमेंट पढ़ना है, सब फील्ड्स और रिसर्च, मेथड्स ऑफ रिसर्च साइकोलॉजी इन इंडिया, ये सब कुछ हमारा अभी बचा है. तो इसमें
3 या 4 सेशंस और लगेंगी और ये चैप्टर हमारा डन हो जाएगा पूरा, ब्लॉक 1 एक्चुअली. So this was what we have studied today. See you in the next lecture and we shall discuss the next part. So today we have done 1.1, 1.2 and 1.3 from this portion. In the next lecture we will, this was part number 1. In the next lecture we will discuss the upcoming portions of this chapter. We shall discuss the whole syllabus in this series ऑलमोस्ट. और असाइनमेंट्स भी हम साइड बाय साइड आंसर्स हमारे निकलते ही जाएंगे अगर हम पूरा चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो. So stay tuned and subscribe if you want this syllabus to be completed. If you are also studying from IGNOU, BA Psychology you are considering as your subject. So stay tuned and we shall discuss the whole syllabus. Every day or alternate day scheduled will be shared with you, and it can be alternate day. So thanks for watching till now. Subscribe for more. Thank you from my study channel. Bye bye. Take care.